तो हम लोग सिस्टर डिनीज की बुक मुरली नोट्स पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, वाई इज़ देयर बिलीफ इन गॉड। Baba is raising some very deep questions about why a person believes in God. How does a person acquire a sense of God? Where does it come from? Most people believe in God because they have been trained to do so through how they were raised as children. This is instilled into them in such a way that they feel that it comes from within, but it comes from an external source that has been internalized. तो बचपन से ही भगवान के बारे में बोलते रहते हैं, पूजा पाठ करते, भक्ति देखते हैं, और ज़्यादातर पूजा पाठ जो करते हैं, जो एक फेस्टिवल रूप में एक चेंज लाने के लिए जीवन में होता है और एक मन में संतुष्टि आने के लिए होता है। तो ये एक्सटर्नल सोर्स से आता है जो अंदर बैठ जाता है, इसीलिए भगवान को विश्वास करते हैं। इन ए फ्यू पीपल देयर इज़ ए डीप मेमोरी ऑफ गॉड। एवरी टाइम द कॉन्फ्लुएंस एज कम्स देयर इज़ a direct personal encounter with God, which seals a most powerful imprint or संस्कार in the soul. भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ चलना, भगवान के साथ इंटरेक्शन करना, उनके हिसाब से चलना, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करना, ये एक इम्प्रिंट बन जाता है। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन: on what basis do I have a relationship with God, a belief in God, an awareness of God? Very often, Baba says in the Murli that no one knows me as I am, what I am, who I am. This is because most people believe in God on the basis of what they were told by people who do not know God. तो बाबा मिल गए, पर ज़्यादातर हमने देखा है कि बाबा को हम दूसरे के हिसाब से जाना। पर संगम युग वो युग है जो अपने हिसाब से जानना ज़रूरी है, जो महसूस किया है, उनके साथ जो संबंध का महसूस था वो होना चाहिए, जिससे भगवान को जान सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट पीपल बिलीव इन गॉड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे वर टोल्ड बाय पीपल हु डू नॉट नो गॉड। बाबा इज आस्किंग अस टू कंसिडर दिस क्वेश्चन। द वर्ड प्रायलोप comes in this Murli. Prayalope is generally translated as oblivion, है ना, distraction हो गया, and it is said that the deity religion has gone into oblivion. But if you go into the depth, you will find something else. Deity dharma is a little different from deity religion. So I am using the word dharma, which is broader in meaning than religion. When applied to deity dharma, pray means it is almost dead, and lop means it has been neglected and set aside. Importance नहीं दिया गया है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है उस धर्म को। बाबा इज सेइंग काल्पनिक समझ लेते हैं, क्योंकि कल्प की आयु इतना लंबा कह दिया, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, जब लंबा कुछ कह देते हैं तो फिर उसको जानना इम्पॉसिबल मान लेते हैं और वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। सो बाबा इज सेइंग दैट द डेटी धर्म इज ऑलमोस्ट डेड,
because Vedic Hindus have discarded it. This is the signal for him to incarnate. तो वैदिक हिंदूज उसको डेटी धर्म को डिस्कार्ड कर दिया और खुद ने अपना स्टोरी बना लिया है, और इसी कारण से बाबा को आना पड़ा. What generally comes under the term Hinduism is what was put in the place of ancient Hinduism by the people who wrote or interpreted the scriptures. They changed the scriptures over time, and according to my research, most of this occurred in the Iron Age. There is very little remaining from the Copper Age. This corresponds to the, क्योंकि कॉपर एज में थोड़ा बहुत, क्योंकि अव्यभिचारी याद होने के कारण सही नॉलेज कुछ था, पर आयरन एज में, आयरन एज के हिसाब से जब स्क्रिप्चर्स बने तो एकदम पलट गया है. दिस करेस्पॉन्ड्स टू द अराइवल ऑफ शंकराचार्य 1500 years ago and the path of sannyas. They effectively displaced ancient Hinduism called the deity dharma in the Copper Age and replaced it with Vedanta, etc. This initiated the concept of omnipresence of God. The concept of Krishna being the speaker of the Gita was inserted about 200 years ago for political reasons, as a method to get Hindus to resist European colonial powers. It was done by publishing the Gita with a front cover of Krishna making war, using the swastika as a weapon, even though in the Gita it says God, Krishna says, I will not fight. जब युद्ध ही नहीं करना है तो अस्त्र की क्या ज़रूरत है? In the Copper Age, it was probably the actual deity dharma in terms of beliefs and religious practices. Baba says the only representation that has persisted through the whole cycle is the image of Vishnu. At the beginning of the Golden Age, the image of Vishnu was placed behind the throne of the Emperor and Empress, Lakshmi and Narayan. तो जो सिंहासन था उसमें विष्णु का इमेज बना हुआ है सत्युग में. Elements that have persisted throughout the history of Hinduism are the images, the figures of the deities, and the symbols attached to those figures. Contained within those symbols is a great deal of meaning, enabling it to survive the alterations that were inserted in later times. तो सारा कुछ जो भी द्वापर युग में बना था, मूर्ति बना था, वो मूर्ति एक्चुअली सिंबॉलिक था और उसके पीछे एक सटल मैसेज था, पर वो समझ नहीं पाने के कारण, बुद्धि धीरे धीरे पत्थर बुद्धि हो जाने के कारण आयरन एज में धीरे धीरे जो सेंसेस द्वारा परसीव किया, आँखों द्वारा देखा, कानों द्वारा सुना, उसी हिसाब से उन बातों को स्टोरी बना दिया है. शिव बाबा uses the presence of these to prove his points of new information. तो यही सारे चीज़ का आधार लेते हैं बाबा हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमारे बुद्धि में ये सारी बातें जो भक्ति वाली बातें हैं वो भरा हुआ है, वो ताज़ा है, और उसके हिसाब से जब बाबा कंपेयर करके
या उसका असली मीनिंग बताते हैं, एक ऊंचा परसेप्शन बताते हैं, बुद्धि खुलने वाला, तब जाके हमें नया इन्फॉर्मेशन महसूस होता है। तब बाबा के बातों पर हमें विश्वास होने लगता है। इन दिस मुरली देर इज ए क्वेश्चन, what are the Kauravas afraid of and what are the Pandavas afraid of? We have to think about this question. The word Sadgati, which is translated as salvation, has two different meanings. In conventional Hinduism, you can say iron-aged Hinduism. Sadgati means that you return back to the soul world. But in Gyan, it has a different meaning. And for returning to the soul world, Baba uses the word Gati or Mukti, which means liberation. Liberation from this world, liberation हर एक अटैचमेंट से, but not permanent or eternal liberation. And Sadgati lies beyond Gati. क्योंकि एक जगह को छोड़ के, सारे चीज़ों को छोड़ के चले जाना, वो सिर्फ गति है, वो सिर्फ मुक्ति है। पर सारे चीज़ें होते हुए, सारे संबंध होते हुए भी बियॉन्ड गति है। लिबरेटेड रहना वो बियॉन्ड गति है। एंड सिग्निफाइज दैट यू फर्स्ट गो टू द वर्ल्ड ऑफ लिबरेशन, द सोल वर्ल्ड, एंड देन यू कंटिन्यू टू द गोल्डन एज, एंड दैट इज़ द रियल सदगति। तो गोल्डन एज में भरपूरता है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ साइंस भी होगा। और साइंस डेफिनेटली, जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होंगे तो बहुत सुखदायी साइंस होंगे, और साथ में संबंध भी होंगे, पर फिर भी सदगति स्टेज में, लिबरेटेड। दिस वर्ड सुख is also used in different ways. In this particular Murli, when Baba is saying that the Sikhs generally favor and give financial advantage to those who are of the same blood. The people of the Sikh religion in the Punjab favor those of their own group, which Baba calls extended families. In the same way, people generally favor those of the same states in India, the Gujaratis, the Maharashtrians. Sukh means financial advantage, not an emotional experience of happiness. The word Takt, Yukti, also comes in the Murli. You have to explain with great tact. यहाँ पर तख्त का कुछ पता चला क्या? हिंदी वर्ड क्या है? You have to explain with great tact. Tact. It is better to use the word tactic, which has a very different meaning from tact. Tact means be polite, and of course it is good to be polite. But Baba says yukti, which means you must have a diplomatic strategy and explain to people systematically to deconstruct their beliefs, which are based on untenable or invalid foundations. तो जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है उसको ख़त्म करना. If you do not understand their foundations and what is wrong with them, you will not be able to create a diplomatic strategy for explaining to them. तो उनका जो कंडीशनिंग हो रखा है, उनका जो फैमिली से जो इनहेरिट करके लाया है, जो
इंफॉर्मेशंस, उसको समझना बहुत ज़रूरी है टू डिकंस्ट्रक्ट देयर बिलीफ्स। इसको बाबा युक्ति कहते हैं। बाबा गिव्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू द गीता देन द भागवत। द भागवत इज a series of volumes containing the stories about Krishna and other deities, which are actually stories about God and souls that have been renamed to refer to Krishna's activities with the gopis and gopis. हमने जो बाबा के साथ अनुभव किया है, बाबा के साथ जो संबंध जोड़ पाया है, वो कृष्णा और गोप गोपी का कहानी के हिसाब से भागवत में लिखा हुआ है। All knowledge is in the Gita. However, it is difficult for people to extract it because the Gita that you can buy in the shops is written by many different people. मनुष्य ने लिखा है, and is full of contradictions and inconsistencies. तो जैसे बुद्धि है वैसे उस हिसाब से समझकर लिख दिया है। When you grasp the knowledge from Baba, you can detect which points in the Gita are correct and which are incorrect. जैसे बाबा कहते हैं कि आटा में नमक मिसल गीता में है, क्योंकि परसीव ही नहीं कर पाए बाबा जो नॉलेज दे रहे। बाबा कनेक्ट्स योर स्टेटस विद द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज। दिस इज वाई द मोर यू चर्न, the more you go into the depth of it, the clearer it becomes. इसीलिए विचार सागर मंथन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि रिफाइन होते जाएगा और क्लैरिटी आते जाएगा। बाबा ऑल्सो टॉक्स अबाउट फिनिशिंग सिंस थ्रू रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस मीन्स दैट यू कनेक्ट विद गॉड and pull his energy into yourself. A large portion of sins occur through being the focus of attention of others who wish you harm. किसी ने हमें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया और हम उसको देखकर उसमें ही फंस गए, उसके साथ इमोशंस से एंटेंगल्ड हो गए कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, उसने ऐसे करने की कोशिश किया है, तो तब जाके ये पाप बन जाता है। When you internalize the harm that others wish you, that becomes your sin. अंदर अगर ले लिया, उसको दूसरी तरह परसीव करके समझकर नहीं लिया, अंदर दुख ले लिया, तो वो पाप कर्म हो जाता है। इट लिमिट्स योर फ्रीडम। तो क्या होता है, अंदर में एक दम घुटने वाला स्टेट हो जाता है, बंधा हुआ महसूस होता है। तो इट लिमिट्स योर फ्रीडम एंड योर एबिलिटी टू थिंक फॉर योर सेल्फ। तो सोचने का क्षमता ही खत्म हो जाता है, रास्ता क्या निकलेगा वही पता नहीं चलता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स यू अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल। फिर आप वल्नरेबल बन जाते हो और लोग कंट्रोल करके आपको विक्टिम बना देते हैं। सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स यू अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल एंड कल्चर्स हु वांट टू कंट्रोल यू। तो उस कल्चर में भी फंस जाते हैं। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद बाबा, यू कैन रिटर्न टू योर सेल्फ सॉवरेंटी। एक बार बाबा से कनेक्शन हो जाता है, बाबा से रस लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर आत्मा में ताकत होने के कारण, वो एम्प्टीनेस फिल्ड रहने के कारण, तो सेल्फ सॉवरेंटी में आ जाते हैं। वो है योर इंडिपेंडेंस। तब किसी के अधीन नहीं होते हैं, किसी इमोशंस के अधीन नहीं होते हैं, किसी आत्मा पर अधीनता नहीं आता है कि दूसरे आत्माओं से रस ले ले। दैट इज रियल स्वराज्य। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पीपल्स एफर्ट्स टू लिमिट एंड कंट्रोल यू।
as well as to make you believe what they believe, whether it is true or not. तो फिर डिपेंडेंसी नहीं होता है किसी आत्मा के ऊपर. वो जो कह रहे हैं, अपना बुद्धि अगर नहीं चलेगा तो फिर दूसरा जो कह रहे हैं वही एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाएगा, वही रास्ता हमें दिखेगा. द कर्मातीत स्टेज also means that you are completely free. Most of the time people do wrong actions because of the influence of external people, cultures and belief systems. तो ये सारे चीज़ों से छूट पाना वो है कर्मातीत स्टेज. और यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए होता है और रिस्क उठाना होता है, क्योंकि रिस्क दिखाई देता है. वहाँ पे रिस्क दिखाई देने के कारण हम वो हिम्मत का कदम उठाने में मेहनत लगता है, क्योंकि हमें आदत हो चुका है कि जहाँ पर मेजॉरिटी है वही सत्य है. हम सटल चीज़ को नहीं देख पाते हैं, बड़े बड़े चीज़ को देखते हैं. जैसे देखिए, छोटे चीज़ जब हम मारते हैं, मच्छर को मारते हैं, कभी भी मन में ये नहीं होता है कि मार दिया. कोई बड़ा चीज़ अगर मर जाता है तो कितना दुख ले लेते हैं हम. अंजी सोनी बहन बोलिए. हाँ आप सही बोल रहे हैं दीदी. आप कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को? हाँ हो गया. मैं यही बोल रही हूँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. ऐसा ही होता है. फिर हम लोग जब यहाँ आते हैं, ठीक है, बाबा ने आज ही मेरा संकल्प चल रहा था कि ऐसे कहा ना कि 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है. तो एटलीस्ट हमारे पास एक 84 का फिगर था जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है. तो उस 84 के फिगर को हम मानते थे, तो हमने इस पे बिलीव भी कर लिया. बाबा इज अ वेरी गुड टीचर. यस. कि हम मान पाए, क्योंकि अगर वो 84 की जगह और कोई फिगर होता तो थोड़ा सा इमेजिनरी लगता. बाबा इसीलिए वो पॉइंट्स को उठाते हैं. राइट. तो जो सिमिलरिटी है. यस एब्सोल्युटली. मेरा आज मॉर्निंग में यही संकल्प चला जब मैं पढ़ रही थी. तो मैं समझ पा रही थी कि बाबा ने हमें साइक्लिक थिंकिंग दी है, सबकी लीनियर है. दो दे आर धर्म स्थापक, बट स्टिल थिंकिंग इज क्वाइट लीनियर. राइट. तो धीरे धीरे के लिए यहाँ जब आपने जो बोला ना कि सटल चीज को हम लोग नहीं कर पाते हैं. डेफिनेटली मच्छर मारना इज लाइक इट्स वेरी कॉमन एंड आपको करना ही है टू सेव योरसेल्फ. लेकिन बड़ी चीज को देखकर दुख होता है अगर हम लोग को कभी कर लेते हैं तो. लेकिन दीदी अभी क्या हुआ, हम ज्ञान में आए. तो जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं ज्ञान में आई तब तक तो बहुत सारी चीजें फर्म हो चुकी थी यज्ञ में भी, है ना. हाँ ऐसा ही है वैसा ही है, कुछ धारणा है, मतलब बेसिस नहीं पता था कि कब कैसे स्टार्ट हुआ और क्या किया होगा एक्चुअली. बट कुछ लोगों ने जब कहा कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे ही करना चाहिए, तो वी बिलीव्ड इन इट. वी स्टार्टेड बिलीविंग इन इट. तो दीदी वो भी कंडीशनिंग हो रखी है. हाँ डेफिनेटली. अब उस कंडीशनिंग से भी फ्री होना है अकॉर्डिंग टू यू, है ना. सेल्फ सॉवरेन. इसी कारण से चर्निंग करना ज़रूरी है. जब मुरली का चर्निंग करना शुरू करेंगे, मुरली को समझ में आने लग जाएगा, बुद्धि यूज़ करना भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा. तब आप जब इंटरेक्शन में आएंगे किसी के साथ, कोई कुछ बोलेगा, उस समय भी आप बुद्धि को यूज़ करेंगे. ओके. ना कि उसी के बात को समझ लेंगे. राइट. तो इसलिए मुरली चर्निंग इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज. राइट. अब आपने जैसे कल की बात में थोड़ा सा डिस्कस इफ यू आर कंफर्टेबल इन बिटवीन. आपने बोला था अशरीरीपन का अभ्यास करने से संकल्पों में हम लोग संकल्पों से हम कम हो जाते हैं ना. तो अशरीरीपन का अभ्यास, तो अब उसमें क्या था, आपने जब मुरली के नोट्स भेजे तो बहुत डिटेल्ड फॉर्म में था. ऑलमोस्ट उसके अंदर सारे डॉट्स थे which were related to that point, है ना. yes. तो फिर मैं स्टक हो गई कि नाउ व्हाट. एक प्रैक्टिस है, अनुभव की बात हो रही है और एक दृढ़ता की बात हो रही है जो आपने हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया.
फिर मैं आगे नहीं कर पाई, तो उसमें क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? ये मेरी सिचुएशन है। इसमें आपको एक एक लाइन को समझना है, एक एक ओके। लाइन के पीछे क्या समझ आ सकता है वैसे समझना ओके। है, या पूरा कंटेक्स्ट को बाबा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ऊपर ऊपर से नहीं समझाते। हम्म। हम्म। बाबा के वर्ड्स में बहुत सारे खजाने होते हैं। हम्म। और कल के जो स्लोगन था ना, वो हाँ। कल के जो स्लोगन है, उस स्लोगन में आई कुड फील बाबा मुझे बता रहे हैं कि अपना प्रोटेक्शन करना सीखो। ओके। और हम प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? अपने कंफर्ट जोन में रह के। हाँ, कंफर्ट जोन में रहना माना हम्म। उसके लिए आप क्या करते हो? जहाँ पर सिक्योरिटी है, पुराना पैटर्न में गॉड वैसा नहीं होता है, नहीं, पुराना पैटर्न सेफ्टी के लिए, सुटेबल है। सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है, मुझे हाँ, बाउंड्री सेफ्टी के सेट लिए करना मैं। है। जितना मेरा ओके। कैपेसिटी राइट। है वहाँ तक बाउंड्री सेट करके रखना है कि मैं यहाँ तक ही इस बात को समझ पा रही हूँ अभी, तो यहाँ तक ही मुझे कदम बढ़ाना है, उसके आगे नहीं बढ़ाना है। जिस दिन समझ ओके। पाऊँगी उस दिन मैं बाउंड्री को एक्सटेंड करते जाऊँगी। ओ। राइट। 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 गॉट इट। तो बाबा ने यही बोला, आप एक बार पढ़ेंगे उस स्लोगन को? हम्म। हाँ, मैं पढ़ती हूँ दीदी। उसमें लिखा हुआ है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। हाँ, तो आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए देखिए, आप हम सब क्या करते हैं, आत्मा में ताकत भरते हैं। जैसे इसमें मूल्य नोट्स में भी दीदी ने बताया कि याद करना, बाबा को याद करना माना बाबा से कनेक्ट होना और बाबा से एनर्जी पुल करना। तो बाबा से एनर्जी जब पुल करते हैं तो ये जमा होता है। फिर आगे बाबा ने दीदी ने लिखा है कि ज़्यादातर पाप कर्म तभी होता है जब हम किसी के जो एक्शन है उसको देख के इंटरप्रेट कर लेते हैं, इंस्टेड कि Influence हो अपने जाता अंदर का इमोशंस को देखे, है ना? ओके। तब पाप कर्म हो जाता है। और हम तभी बाहर देखते हैं जब हम भरपूर नहीं होते हैं, बाबा से ले नहीं पाते हैं। पर मुझे पता है, हम सब को अपना अपना स्थिति पता है कि मेरा कैपेसिटी कहाँ तक है। अगर मेरा योग कम है, अगर मैं आज वो स्थिति में नहीं हूँ कि अपने को संभाल सकूं, तो भले वो कार्य नहीं करे जहाँ पर जाने से मैं विक्टिम बन जाऊँ। वो बाउंड्री सेट करना है। तो हम सबको पता रहता है आज मैं वल्नरेबल हूँ, तो अपने को बचाना है। तो ये जब आप बचाएंगे तो दो चीज़ होगा, एक अशरीरी बनकर रहेंगे, अपना स्टेबल स्टेट में रहेंगे। ओके। ये एक प्रैक्टिस है ना, कि सेल्फ कनेक्टेड रहना। और साथ में आप व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने को बचा के रखा है। जब कोई सिचुएशन को एनकाउंटर करने नहीं देंगे, किसी आत्मा के साथ एनकाउंटर होने का चांस ही नहीं देंगे, तो व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। तो आपने जितना जमा किया है शक्ति, उसको भी बचाया, और साथ में अपने साथ रह के, सॉलिट्यूड में रह के, एकांत में रह के अपना स्थिति को हैंडल कर लिया। फिर जब ताकत आ जाएगा, फिर जब आप तैयार हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, तब आप बाहर निकलेंगे फिर से बैटलफील्ड में। क्लियर हुआ? थैंक यू। सो इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर महसूसता की शक्ति,
क्योंकि हर जगह पे महसूसता की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा कॉन्शियंस। कॉन्शियंस को अगर छोड़ देते हैं, एक बार छोड़ दिया तो फिर वापस जाने में बहुत मेहनत हो जाता है, क्योंकि हम बाहर निकल जाते हैं। राइट। बट दीदी ये जो महसूसता की शक्ति है, मेरे को लगता है हर आत्मा ही इसको महसूस करती है, लेकिन ना बहुत 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 ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और वो इतना पावरफुल नहीं होता कभी कभी। अवेयरनेस नहीं मतलब रहता है, तब तक अवेयरनेस नहीं रहता है, क्योंकि हमने 63 जन्मों से छोड़ रखा था अपने आप को, बाहर ही देखा है ना, दूसरों को ही देखा। तो वो प्रैक्टिस नहीं है, वो अवेयरनेस अभी आया नहीं है। इसीलिए तो एकांत में बैठना बहुत ज़रूरी है। एकांत में कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, राइट? तो एकांत में बैठना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि कॉन्शियस का आवाज़ सुनना सीखे। ये एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। यस यस तो योर रिफाइंड कॉन्शियस दैट कीप्स यू सोल कॉन्शियस एंड योर एक्शंस बिकम प्योर कर्मा, क्योंकि ये कॉन्शियस ही आपको गाइड करता है, इंट्यूशन, कि मैं राइट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आज क्या हुआ, ओपीडी में मेरे सामने जो डॉक्टर का कुर्सी है, उसमें एक नर्स आके बैठी, मेरे से मिलने आई थी, मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो बैठी थी, तो बैठ के मेरे से कुछ शेयर कर रही थी। उसी समय वो डॉक्टर आ गए। अब वो डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाई, पर ऐसे ही कुछ वो करके फ़ोन लेके चले गए बाहर। मैं समझ गई कि उनको बुरा लगा कि अपना कुर्सी पे कोई और बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये उनका सीट है, इसलिए तो उनको समझ में आया। वो नर्स चली गई वहाँ से, बोला अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ करके चली गई। तो थोड़े समय के लिए उनका स्थिति बहुत हिला है, पर साथ के साथ मैं अपना स्थिति पे चेकिंग कर रही थी। ऐसे नहीं कि उनकी स्थिति हिला तो उनमें फंस जाऊँ, क्योंकि वहाँ फंसते ही हम अपना एनर्जी खो देंगे। क्योंकि सामने वाला जो जब हिलते हैं, उनको एनर्जी का डिमांड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है, और वो स्ट्रॉन्ग डिमांड उनको कहीं से भी लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। चाहे वो गुस्से में ले लेंगे या कोई भी इमोशंस को यूज़ करके लेने की कोशिश करेंगे। तो उस समय अपने को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने अंदर चेक कर रही थी कि क्या मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। जब मैंने एनालाइज किया बात को बैठे बैठे कि हाँ, ये तो मेरे साथ कोई कर्मा नहीं था, वो दोनों के आपस में कर्मा था। शी कुड हैव टोल्ड हर कि कैन यू प्लीज़ कम एंड सिट हियर, ये मेरा कुर्सी है। वो नहीं बोल पाई, तो यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है। तब ये समझ के, जैसे बाबा ने कहा ना, विष्णु बनकर हर्षित होकर उसको मंथन करते रहो, सीन को देखते रहो। बट दीदी ये थॉट भी तो चल सकता था ना, मतलब मैं आई एम जस्ट टेलिंग द प्रोबेबिलिटी कि ना मुझे पहले ही मना करना चाहिए था उनको भी, सर की मैम की है ये, तो आपको यहाँ बैठना चाहिए था। मतलब ये भी थॉट चल सकता है कि मुझे पहले ही उनको बोल देना चाहिए था कि ये डॉक्टर की सीट है और। देखिए, वहाँ पर कोई निर्धारित डॉक्टर का सीट है ही नहीं एक्चुअली। ओके। तो मेरे तरफ से वो बात था नहीं, क्योंकि मेरे चेयर पे भी कोई कंपाउंडर बैठ जाते हैं मेरे एब्सेंस में, है ना। तो अगर मेरे सीट पे बैठ सकते, उनके सीट में भी बैठ सकते, वो मना नहीं है। और वो उनके एब्सेंस में बैठे हैं, राइट। ओके। उनको अगर अच्छा नहीं लगा तो शी कुड हैव टोल्ड हर। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आपने जो सोचा वो एक्यूरेट था, बट ऐसे भी
तब अगर स्थिति सही नहीं होती तो अगर हम लोग प्रोटेक्ट करने की जगह हम हाँ, भी राइट, ऐसे अपने अंदर गिल्ट हो राइट। जाते हैं ना, ये कॉन्शियस बात हो आया जाते था, हैं। आप सही कह रहे हो, ये बात आया था मेरे मन हम्म में कि क्या हम्म मुझे पहले ही रोकना था। फिर ये बात हम्म याद आया कि नहीं, ये कुर्सी कोई निर्धारित नहीं है, हम्म है ना। और उस बहन का भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं डॉक्टर का कुर्सी में बैठूं। वो मेरे से मिलने आए तो बैठे थे। हम्म। और ये बात सही लगी कि आपने भी एक इक्वालिटी जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, इक्वालिटी की, हम्म, इक्वानिमिटी की, वो रही। हम्म, वो ही थॉट जहाँ पर हम इक्वालिटी और इक्वानिमिटी को मेंटेन रखते हैं, वही एक्चुअली राइट थॉट है। क्या लगता है आपको? यस। और मैंने हम्म मैंने ना अपने को संभाल लिया और अपने खुशी में रही मैं। हम्म फिर थोड़ा सा मुझे आया कि अभी उनको, वो डॉक्टर को थोड़ा सा वो बुरा लगा। नाउ शी विल, हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, बट ड्रामेटिकली व्हाट हैपेंड, यू नो, हम्म। थोड़ी देर में वो सेटल हो गई और बहुत वाह। अच्छा से बात किया और वापस उसी स्टेट में आ गए, पहले वाला स्टेट में। हम्म तो काम किया। जब आप अपना अपना स्थिति को संभाल लेते हो तो फिर सामने वाला को बाबा की शक्ति मिल जाता है। गॉट इट। वंडरफुल। तो इसीलिए उसमें नहीं फंस के, किसी के संस्कार में नहीं फंस के, खुद के साथ जुड़े रहो। Baba talks about the necessity of destruction through civil war in India and international nuclear war. There is a reference to the Great War. However, the Great War was the First World War. The two atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki, referenced here, occurred at the end of the Second World War. Now there are conventional weapons that are more powerful than those bombs, and it is legal to use them. As always, Baba gives great importance to remembrance. We have to think about the deep meaning of Manmanabhav, which means to perceive the being of God with your mind. बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं? बाबा के साथ जुड़ने से सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, मन शांत हो जाना चाहिए। Baba says that they have written defamatory statements in the Gita, and those are connected with the concept of omnipresence. Shiv Baba says there is very little time and it goes by very fast. Use this time because later you will no longer be able to take power. Everything is predestined, including all your trouble, obstacles and opposition. ये सब बना हुआ है, इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। चैलेंजेस आएगा, विघन आएगा, ऑपोजिशन होगा, so just get through it. Any way you get through it, every time, every cycle, Baba takes up the word honesty. Think about the meaning of honesty in the heart and in the head. The word layak, translated as worthy, also means competent. Trusted is a complex word. Some people will trust you on condition that they control you. कि मैं जो काम दे रही हूँ वो काम आप कर लेते हो, अच्छा से कर लेते हो, तो ये ट्रस्ट। Other people will trust you because you are that level of soul. So look at yourself and decide who you are. तो ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए जैसे बाबा के साथ एक भरोसा होता है, वैसे अपने अंदर एक
ऐसे क्वालिटी हो जो लोग भरोसा करने लग जाएं कि हाँ, ये मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। तो वो ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि कंट्रोल वाला ट्रस्ट हो। अच्छा, ओम शांति। और कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू। एक वर्ड बाबा ने कहा, ये दीदी ने कहा है, युक्ति। यू आर रीडिंग दिस पॉइंट ना, तो मेरे इसका नेट ऑफ हो गया था दीदी। अच्छा, तो द वर्ड तख्त बोला, टैक्ट, TACT, ये हाँ, कौन सा हिंदी वर्ड समझ में नहीं आया। एक मिनट दीदी, मैं वैसे मेरे ख्याल से ना ये टैक्टफुल मतलब युक्ति ही होता है इसका मतलब। टैक्टिक बोला, हाँ। Tact means the ability to deal with people without offending or upsetting them. हाँ, तो ये युक्ति ही है, राइट। Okay, yes, absolutely. युक्ति है ये। युक्ति से, और युक्ति माना ये नहीं है कि झूठ बोलना है, उसमें सच्चाई भी हो Actually, और काम भी ये बोल निकल सकते हैं जाए। दीदी कि आपके जैसे बाबा को युक्तेश्वर बोलते हैं, तो बाबा ने अपनी बात को भी रखा है। और किसी भी और रिलीजन में या कोई भी रिलीजन था या संन्यास धर्म था, जो भी है पावरफुल रिलीजियस पीपल या पॉलिटिकल पीपल, किसी को भी इस चीज का बुरा नहीं लगा, राइट। एंड ही हैंडल्ड, क्योंकि एक इतना नया ज्ञान, पूरा बेसिक चेंज कंडीशनिंग, क्योंकि वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, सब तो बच्चे हैं, उनको इंटेंशन, तो दैट मींस इंटेंशन उनको अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो युक्ति मींस योर इंटेंशन शुड बी प्योर। यस, ओके। एक्चुअली बाबा के वर्ड्स आप देखना, बाबा के वर्ड्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, सबके लिए होते हैं, कॉमन, जो जैसे ले ले। पर हम जब एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हमारा लिमिटेडनेस आ जाता है। तो हमेशा हम जब कोई भी कर्म करते हैं, ये एक बहुत अच्छा चेकिंग है कि चेक करना है कि मैं लिमिटेडनेस में हूँ या अनलिमिटेड हूँ। इवन चर्निंग करते समय, कि मेरा चर्निंग से वो लिमिटेडनेस आ रहा है या अनलिमिटेडनेस दिख रहा है। ओके दीदी, ये नई बात इंसाइटफुल है, राइट। हाँ, ये बेहद की दृष्टि हमेशा रखना है, तब जाके हम वो सटल स्टेट तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकते हो, मतलब कैसे, मतलब चेक कर सकते हैं अपन जब चर्निंग कर रहे थे? हाँ, जैसे आप चर्निंग करते हो, ये नहीं होगा कि किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हो और किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो। डिवीजन नहीं होगा वहाँ पे। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, जैसे बाबा कहते हैं कुमारियों को अलग से कहते हैं, माताओं को अलग से कहते हैं। बाबा का दृष्टि क्या है? बाबा जब कहते हैं कुमारियों के बारे में, कोई भी माताओं को ये फीलिंग नहीं होता है कि अरे कुमारियों को देखो कितना अच्छा बोला, हमें नहीं बोला। नहीं, क्योंकि ग्रुप बड़ा है, इसीलिए बाबा अलग से मेंशन करते हैं। पर आप देखना, इसी बात को जब हम कहने लग गए, हम आत्माएं उस कुमारी और जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुमारी और माताओं को एक अलग इंटेंशन से कहा गया है। कुमारी कौन है, उनके पीछे एक अलग इंटेंशन, माताएं कौन है, उनके पीछे एक अलग इंटेंशन रहता है। वहाँ पर इम्प्योरिटीज मिक्स रहता है। हाँ, वो फील भी होता है। हाँ। अभी मैं जब सेंटर पे जाती हूँ तब मुझे लगता है। तो एक डिवीजन है वहाँ पे। तो जहाँ डिवीजन है वो हद है, वहाँ एक वो है, लिमिटेडनेस है, अनलिमिटेडनेस नहीं है। तो आपका धीरे धीरे जैसे सोल कॉन्शियस स्टेट आएगा, तो वो अनलिमिटेडनेस में जाओगे आप। तब माताओं को देख के ये फील नहीं होगा कि वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि
माताओं को ऐसे वो करके रखा है कि अम, वो तो प्रजा में ही जाएंगे। पुरुषार्थी माताएं हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी उठाना है। और ज़्यादातर माताएं आप देखना कि वो एकदम इन्फीरियर होके रहते हैं, सबको बड़े देखते हैं और कुमारियों को समझते हैं ये तो वो है, शिव शक्ति है। आज एक आए थे माता मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया, उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ। तो मैंने बोला कि अभी आप ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं लो, मैं जो दवाई दे रही हूँ ये आप लो, देखते हैं, आप बीपी रोज़ चेक करना। तो थर्ड डे जब चेक किया थोड़ा सा कम आया, फिर आके मुझे बोल रही है कि मैं संकल्प किया कि बाबा शिव शक्ति द्वारा मुझे दवाई लिख रहे हैं और मैं ठीक हो रही हूँ। जैसे ही बोला, मैंने बोला शिव शक्ति आप नहीं हो क्या? आप भी तो शिव शक्ति हो। आप सारे चैलेंजेस को फेस करके बाबा के बन करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हो ना, आप भी तो शिव शक्ति हो। वो चुप हो गए फिर, क्योंकि हमें हर जगह पे देखना है कोई, क्योंकि वो लो फील कर रहे हैं, वो अपने को इन्फीरियर कर दिया, फट से इन्फीरियर करके वो दिखा रहे कि बाबा ने आपके द्वारा किया है। तो वो समझ दे के उठाना है सबको, जबकि मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं उनको अच्छा से। तो ये है बेहद की दृष्टि, सबको समान, एक भावना पैदा हो कि सब अपने हैं, अलग नहीं है कोई भी। भले उनके संस्कार के हिसाब से उनको वैसे ही उनको आगे बढ़ाना पड़ता है, अलग रूप से रास्ता दिखाना पड़ता है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बाबा सेवाधारी बच्चे बोलते हैं कि सेवाधारी बच्चे, आज बोला है ना बाबा ने वरदान में कि सेवाधारी बच्चे ऐसे होते हैं, सबको उठाने की कोशिश करेंगे। पर सेवाधारी का मीनिंग क्या है? हम लिमिटेड सेवाधारी में फंसे हुए, लिमिटेड नॉलेज में फंसे हुए हैं। सेवाधारी माना ये थोड़ी है कि जो बाहर से आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेवा करते हैं वो सेवाधारी नहीं, हम सब सेवाधारी हैं। सेवाधारी वर्ड इतना ऊंचा है पर उसको लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि डिग्रेड हो रखा है। बुद्धि को ऊंचा करने के लिए चरण नहीं कर पाते हैं, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस्ड नहीं रख पाते हैं, इसी वजह से वो लिमिटेडनेस में फंसे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा बंधन है, उन्हें नहीं देते हैं आत्मा को, राइट? यस दीदी। डिस्क्रिमिनेट तो करते ही हैं काफी लोग। जैसे कुछ आत्माएं जो धारणा वाली होती है उनको उनका संग ज्यादा पसंद करते हैं। अगर धारणा वाले हैं तो जो धारणा में कमजोर होते हैं उनके साथ में उनको थोड़ा सा इंफीरियोरिटी से या फिर ऐसे देखते हैं कि उनको सेपरेट करते हैं। ऐसे तो बहुत देखा है मैंने। देखिए, जो धारणा वाले नहीं हैं, बाबा ये भी कहते हैं कि संग का वो रखना, कुसंग में नहीं जाना, राइट? तो एक तो धारणा वाले दो मीनिंग हो सकते हैं। एक धारणा वाले होते हैं जो जानबूझ के धारणा नहीं करते, ओके, है ना, वो भिन्न भिन्न विकारों में फंसे हुए हैं, एनवायरनमेंट होते मिलते हुए भी। हाँ बस environment है। हाँ। और एक है ताकत नहीं है, करना चाहते हैं, धारणा करने चाहते हैं,
तो संग जो अपने आप धारणा नहीं करते हैं, जो कर सकते हैं और करते नहीं है, इंटेंशनली नहीं करते हैं, वो है कुसंग। उनको अलग ही रहने देना है। उनमें फंस के हम फंस नहीं जाए, हमारा धारणा को ख़त्म नहीं करना है। और दूसरा, जो धारणा करना चाहते हैं पर ताकत नहीं है, उनका साथ देना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने का युक्ति निकाल के उनको आगे बढ़ाना होता है। दृष्टि भले दोनों का सेम हो, एक के प्रति शुभ भावना है कि आगे बढ़े, दूसरे के प्रति भी वही शुभ भावना है कि उसको समझ में आ जाए, पर मुझे फंसना नहीं है उस संग में। ओके ओके, है ना? क्योंकि आप एक हीरा अगर कोयला में घुस जाते हो फिर से, तो फिर काला दाग लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझ हीरा को बचा के रखना है, क्योंकि मेरे से बहुतों का फ़ायदा हो रहा है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट सोल हूँ, राइट? इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ संग का ध्यान रखना, ओके दीदी, राइट। है ना? क्योंकि बाबा नहीं चाहेंगे कि आप अपने को लूज़ कर दो दूसरे को बचाने का चक्कर में। क्योंकि आपका स्थिति जब सही रहेगा, आप वो वातावरण बनाते जाओगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुद्ध वातावरण। और वो शुद्ध वातावरण मिलने के बाद हो सकता है वो जो गिरे हुए, वो जो आत्मा डिग्रेडेड है, डिप्लीटेड है, कि वो बुरे कर्मों में ही फंसे हुए हैं, वो बदल जाए कभी। पर आप जब फंस जाओगे उसमें, तो फिर वो चांस भी नहीं रहेगा। तो बाबा का जो प्लान है ना, वो ऐसे है कि स्थापना का कार्य कैसे कर रहे हैं बाबा। आप बैठ के सोचेंगे ना, बाबा का बुद्धि ही अलग है। तो बाबा के माइंड के साथ जब आप अलाइंड हो जाएंगे, मन मना भव, तो समझ में आएगा कि बाबा कैसे कैसे युक्ति रच रहे हैं। क्योंकि बाबा जनरलाइज्ड वे में मुरली में कहते हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए नहीं कह रहे। इसलिए पैराडॉक्सिस है मुरली में। थैंक यू दीदी, क्लियर करने के लिए इस पॉइंट को। थैंक यू। मैं फंस जाते हैं और फंसना माना ही क्लियरिटी नहीं है। हाँ, जैसे बाबा ने बोला कुमारियों को नौकरी का टोकरी नहीं उठाना है ना? तो हम अगर ऐसे ही ले लेते हैं, बातों को समझना है, कब के लिए बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, वो है हमारा बुद्धि लगाने का काम। बुद्धि नहीं लगाएंगे तो कोई भी बात, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं होगा। राइट। चाहे वो बाबा की बात हो या कोई आत्मा की बात हो, बुद्धि को लगाना है हमें। काम ही है बुद्धि का। बाबा बुद्धि को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, कि बुद्धि के हाथ में ही सारा कंट्रोल है। मन तभी कंट्रोल में आ जाएगा। और तभी हम सेल्फ कनेक्टेड होंगे, तभी हम अपने को आत्मा समझने लगेंगे। बहुत सटल है समझना। बाबा हमेशा समझना कहते, अपने को आत्मा देखो नहीं कहते, आत्मा समझो। और समझ बुद्धि से ही होता है। तो इतना मुरली में अवेयरनेस हो कि बाबा क्या कह रहे हैं, उसको पकड़ ले। ठीक है जी, यस दीदी।
और कुछ कहना है? नहीं, बस ओके, ओम शांति।